کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ چلیں بزر کے بعد 30 سیکنڈ تک ہونے ہیں. ہاں جی جوری ممبرز پہلے آپ سے پوچھ لیتی ہوں. ان کو پتا ہے کہ یہ 2.5 منٹ میں اور بزر لگا ہوا ہے، ان کو میں نے وہاں بتایا. اچھا علی زین آپ کو ویسے ان کو میرے خیال سے پتا ہے جتنے بھی ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں تو بزر کی آواز. علی زین ویسے آپ کو بزر کی آواز آئی تھی؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، دوبارہ بتائیے گا. نہیں میں نے آپ سے پوچھا آپ کو بزر کی آواز آئی تھی؟ نہیں مجھے نہیں آئی. اچھا آپ کو بزر کی آواز نہیں آئی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بزر کی آواز ٹھیک ہے تمہاری کنٹیسٹنٹ کو جائے گی جیسے آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. چلیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں ان کو آواز نہیں آئی تھی. کیسے پڑھا انہوں نے؟ پڑھا انہوں نے ماشاءاللہ شروع میں بہت اچھا پڑھا، انترے میں کہیں کہیں کچھ خامیاں لگیں ہلکی پھلکی سی، لیکن بہرحال اوور آل بہت اچھا پڑھا. اویس یہی ہماری آبزرویشن تھی کہ مجھے بھی انترے میں تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا یہ ویک ہو رہے ہیں اور سر گرا نہیں رہے، لیکن وہ جو اس کی ایک پاور ہوتی ہے نا جس اسٹرینتھ کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا تھا یہ ویک کر رہے تھے. اچھا تو فیل ہوا، لیکن اس کو سر کا گرنا شاید نہ کہا جائے تو بہتر ہوگا. جویریہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے، بس یہ جب تھوڑا سا باہر جا کے جو واپس آتے تھے نا اس میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی کمزوری فیل ہو رہی تھی. ادروائز اوور آل ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا، بہت ان کی آواز میں ٹھہراؤ، بہت اچھا پڑھا. تو یہ بتائیں گے ججز بتائیں گے سارے نمبر سے. وسیع بھائی بتائیں گے. نہیں دیکھیے یہ جو سوچ رہے ہیں یہ اپنے مزاج کے مطابق بات کر رہے ہیں، میں اپنے مزاج کے مطابق. ہاں جی 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 بالکل ظاہر ہے. آپ وہ تو میرے لحاظ سے تو شروع سے ہی جو آئے نا وہ بہت کمزور آئے. باغ خلیل، خلیل میں ان کا خلیل واضح نہیں تھا، اور میرے پہ بھی وہ بہت جلدی تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ. میرے شاہ کو انہوں نے میرے شاہ کہا، حالانکہ حیران ہوں میرے شاہ. یہ میرے لحاظ سے ان کی غلطی ہے. ٹھیک ہے. اور سبھی بھائی بہت خوبصورت پڑھا انہوں نے، اور جن باتوں کی نشاندہی کی گئی اس کا ریزن ہے، اس لیے کہ ایک عیب تناہی، بیٹا یہ نہیں لفظ عیب تناہی ہے، میں نے پہلے بھی شاید کسی مقابلے میں بتایا تھا، ادھر ہی بتایا تھا یہ غلطی ہے. جی جی لیکن یہ کہ پڑھا بہت اچھا ہے. ہوتا یہ بیٹا روزے میں گلا خشک ہو جاتا ہے، سانس پورا نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ادا تو کرنا ہے آپ نے اس کو.
इस वजह से खुश्की की वजह से वो आदमी सही अदा नहीं कर पा रहा होता, लेकिन इन्होंने बहुत कमाल महारत से सुर को कमज़ोर नहीं होने दिया। मेरे ख्याल में ये है कि अगर लफ्ज़ वाज़ेह नहीं होंगे तो वो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। मैं अपना ख्याल बता दूं, उसके बाद फिर बता दीजिए। लफ्ज़ वाज़ेह नहीं है ना, तो बहुत ही ठीक है, खूबसूरत आपका पढ़ा, अपना ख्याल और सही बहुत जो धुन इख्तियार की इन्होंने उसमें बहुत बात ये होती है कि एक फील पैदा कर देना, एक तासुर बनाने, सुनने वाला खो जाए उसमें, ये बहुत अहमियत वाली बात होती है। अच्छा, बहुत हम नहीं खोए, खूबसूरत हमें फीलिंग ही महसूस नहीं हुई। हालांकि मैं समझता हूं इस कलाम के लिए धुन होनी नहीं सर चाहिए। वैसे भी जो है ना, जजेस अगर ऐसे हों कि जो एक दूसरे पे हर बात पे मुत्तफिक हों तो वो जजमेंट तो ना हुई ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाजरीन, ब्रेक से पहले हमने आपके सामने बनो समा की आवाज़ के पहले कंटेस्टेंट को परफॉर्म करवाया था। अली ज़ैन आसिफ उनका नाम था। अब हम आते हैं हमारे दूसरे जो पार्टिसिपेंट हैं, उनका नाम है सैयद उसामा, जिनका ताल्लुक पेशावर से है। वो पेशावर स्टूडियो में मौजूद हैं और उनका आईडी है 08 यानी 8। जी उसामा, आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। उसामा, क्या कलाम पढ़ेंगे आज? जी मैं जनाब पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का कलाम ग़ुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले। जी बिस्मिल्लाह कीजिए जी आप। ग़ुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, ग़ुलाम हश्र में वो उनका फ़ख्र सुलेमान को जिस पे रश का वो उनका फ़ख्र सुलेमान को जिस पे रश का वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुँह छुपा के चले, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुँह छुपा के चले, ग़ुलाम हश्र में। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी
سید اسامہ پشاور سے ان کا تعلق، جوری ممبرس ان کی آڈیشن کی اور اس کے بعد پہلے مرحلے کے بعد آج کی پرفارمنس کیسی لگی آپ کو؟ یہ امپروو کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ. ان کی آڈیشن کی پرفارمنس سے پہلے راؤنڈ کی پرفارمنس اور کمپیئر کریں اگر آج کی پرفارمنس تو آج تو انہوں نے بہت امپروو کیا ہے. کچھ غلطیاں جو تھیں وہ جیسے یہ جس کو جیس بہت زیادہ ڈریگ کیا وہ تھوڑا سا، حالانکہ انہوں نے اگلا جو حرف اس کا جو ہم ردیف یا ہم قافیہ لفظ استعمال کیا تھا اس میں اس طرح اس کو لمبا نہیں کیا تھا، یہ تھوڑی سی غلطی تھی. باقی اوور آل بہت اچھا پڑا. جویری آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا پڑا ماشاءاللہ. مجھے لگتا ہے بس تھوڑا اور اس کو جو ایک کہتے ہیں نا سوز کی، مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ سارا دھیان ان کا مجھے لگتا ہے جگہوں پر تھا. ہاں یہ بات ہے ویسے زبیر جی یہ ٹینشن ضرور ہے. یہ ہے. ہاں چلے جی ججز. میرے خیال میں بہت اچھا پڑا اور ہر لفظ واضح تھا اور میرے لحاظ سے انہوں نے ہر لفظ کو بالکل جو اس طرح ادا کرنا چاہیے تھا ویسے ادا کی. بھائی فصیح بھائی نے تو آپ کو جو ہے وہ بہت اچھے ریمارکس دیے ہیں. ریمارکس اچھے دیے ہیں، مارکس پتہ نہیں کتنے دیں گے، ریمارکس اچھے دیے ہیں. جی جزاک اللہ. شکریہ. بہت ہی خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ. اس طرح کی دھنیں جب اختیار کی جاتی ہیں نا تو اس میں نے شاید پہلے بھی اپنی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ پڑھنے والا لفظ کی ایڈجسٹمنٹ اپنے سانس کے مطابق کرتا ہے. دوسرا یہ کہ اس نے اس لے کو کہیں گرنے نہیں دیا، ٹوٹنے نہیں دیا، بکھرنے نہیں دیا، تو پھر اگر کہیں اس طرح لے بھی جائے نا آدمی تو وہ چل جاتا ہے. اس لیے کہ ہر آدمی کی سانس اور ہر آدمی کی پڑھت کا اسٹائل اپنا ہوتا ہے. ایک ہی کلام کو 20 آدمی پڑھیں گے، کہیں نہ کہیں اپنی جگہ، کہیں نہ کہیں اپنا آہنگ ضرور آئے گا. تو میرے اعتبار سے اسامہ نے بھرپور پڑھا ماشاءاللہ اور بہت خوبصورت جگہ ہے. میں ہر اس دھن کو جو ٹھہری ہوئی دھن ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی جو بچہ گیا ہے ٹھہری ہوئی دھنوں میں ٹھہرا کر سر کو پڑھنا بہت مشقت کا کام ہے. اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے ان لوگوں کی. چلے جی یہ تو تھے ہمارے آج کے دوسرے کنٹیسٹنٹ اور آج کے آخری اور تیسرے کنٹیسٹنٹ احسان اللہ خان اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم احسان، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، آ رہی ہے آواز مجھے. زبردست. اچھا آپ مجھے بتائیں آپ آج کون سے کلام پڑھیں گے؟ کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ کیجئے. جی. کس کی آمد یہ کیسی چمن آرائی ہے، ہر طرف مہکتے ہیں، بہار آئی ہے، کس کی آمد ہے. عطر افشاں مدینے سے ہوا آئی ہے، عطر افشاں جو مدینے سے ہوا آئی ہے، زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی
यकीनन कहीं लहरा बजर की आवाज है उस पे उन्होंने यहाँ पे एकदम से सही। ब्रेक हाँ, वो लगाया। टाइम खत्म हो गया था, लेकिन आपने एक अच्छी कोशिश की थी करने में, लेकिन आप दोबारा रुक गए। एहसान अल्लाह खान, बड़ी प्यारी आपने नात पढ़ी। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गए आप? वो बजर की वजह से परेशान हुए हैं, लेकिन बजर जब बजती है उसके बाद आपके पास 30 सेकंड्स होते हैं आपको वाइंड अप करने के लिए। चलें ठीक हो है, गया, कोई चलें। मसला नहीं, परेशान मत हो। हाँ जी, मुझे रिमेम्बर मुझे बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत कमाल पढ़ा, सुकून के साथ, फील्स के साथ, हर अल्फाज को अदायगी के साथ पढ़ना बेहतरीन, बहुत अच्छा पढ़ा। वैसे मुझे भी आज जो तीनों की तीनों नाते ना बहुत ठहराव वाली नाते थी, हाँ है ना? मुश्किल कंपोजिशन है, बड़ी- इनको पढ़ना मुश्किल है, और लाइव पढ़ना, मुकाबले में पढ़ना बहुत अच्छा पढ़ा। माशाल्लाह। उवैस नहीं, अच्छा तो है, लेकिन मेरे हिसाब से सलमान आपकी बात से तायद नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत समझदार और पढ़ने वाला आदमी, आपने साज़े कराम ने भी पढ़त देखी इनकी, तो इन्होंने दो चार जो बहलावे अंतरे में जाके लिए वो थोड़ा सा नोट चेंज कर दिया। हाँ, वो नोट चेंज कर दिया, और हम हर एक से यही कह रहे हैं, अपने लिहाज से अपने लिहाज से चेंज नहीं कर हो रही है, अगर नहीं नात कर सकते हैं, लेकिन लिहाज से माहौल कर बदल जाता है। अच्छा, एक नोट किस राग का है, एक नोट किस राग का है, वो माहौल बदल देता है। खूबसूरती के लिए अगर वो लेकिन करना वो कर रहा कामयाबी से है वापस तो आ नहीं रहा है आ- ना। वापस आ रहा है, अपनी जगह पर आ रहा है, नहीं, वो आने का मकसद उसी माहौल को अगर वापस लेकर आ समझदार रहा है। पढ़ने वाला नहीं, है, अवेश भाई, ये तो उसी माहौल में या उससे मुताबिकत रखते हुए माहौल में जाएगा और उसी में वापस लेकिन आएगा। इतनी गुंजाइश हो सकती है कि वापस आ सकता है, अगर किसी और मतलब मैं वही कह रहा हूँ, यही तो कह रहे हैं कि उस मॉल में वापस आया, वो उसने वापस किसी खत्म और किया। राग में चला गया, वापस आ सकता है। लेकिन मेरे नजदीक इनकी गलती है कि फूल वाजे नहीं था, और यकीनन इन्होंने दोनों दफा छोटे काफ से कहा। फूल में वो लाम आखिर में वाजे नहीं था, वाज़ेह ये नहीं कह था। रहे हैं तो फूल देखो ना, अब आप तरन्नुमी को देखेंगे, लफ्जों की अदायगी सही नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरे नजदीक। जी जी, अच्छा, वो लेकिन पढ़ा वैसे कैसे? बहुत अच्छी पढ़ा है, हाँ, पढ़ा अच्छा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक दो अल्फाज जो है वो वाजे नहीं फूल वाजे नहीं था, और काफी डाउन यकीनन हो गया इन्होंने जितने दफा कहा वो छोटे काफ से कहा। हाँ, हाँ। अच्छा, ये बताइए कि वो चलें, अब पढ़ा आप कह रहे हैं अच्छा है, लेकिन वो दो तीन अल्फाज तो उसमें माफी की गुंजाइश बनती है कि नहीं बनती? ये नंबर कटेंगे उसमें तो। नंबर कटेंगे? अच्छा, चलें। सभी भाई सही। माशाल्लाह एहसानुल्लाह ने अच्छा पढ़ने की कोशिश की है। आवाज़ आपकी बहुत खूबसूरत है बेटे, और आपके यहाँ एक जो यूनिक बात है वो ये है कि आपके आवाज़ में एक लोच है, लेकिन उस लोच से मिठास के साथ भरपूर काम लेना आपका काम है। इस धुन में जो आपने बाज़ चीज़ें कमज़ोर की हैं वो ये हैं कि कंटिन्यूटी एक लय की ख़त्म हो जाए ना, अगर पढ़ते पढ़ते आप दूसरी किसी चीज़ में बहलावे में निकल गए। वैस बिल्कुल ठीक कह रहा है कि तासुर अगर बदल जाए धुन का, आप कोई भी काम करके आए हैं, या तो आप इतने मशकों के आके वापस वहीं जोड़ दें जहाँ से आपने शुरू किया था, या जिस कैफियत में आपने शुरू किया था। तो बेटे दूसरा पॉजेज इतने आ जाते हैं, इतना स्पेस आया है पढ़ने में आपके कि उसकी कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रही। कलाम की जो हुस्न बहुत बढ़ सकता था आपकी पढ़त से, वो कम हो गया। दूसरा ये लफ्ज़ जब हम आमद कहते हैं ना बेटे, आमद होगा, आमद नहीं होगा। जैसे ही नाक में जाएगा इस लफ्ज़ का साउंड ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है, इतना जमकर पढ़ने वाले आप आदमी हैं, इन बातों का ख्याल रखें तो मज़ीद बेहतर पढ़ सकते हैं इसको। मुझे तो लग रहा है ज़ुबैर भी आज भी जो तीनों कंटेस्टेंट है ना, उनके दरमियान जो है ना अब जो मुकाबला काफ़ी सख्त हो, वो जजेस के लिए मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं कि तीनों आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि मुकाबला है, मुकाबले में बहुत बारीकी से देखा जाता है, इसलिए कि ज़ाहिर है कि हर मौके पर तीनों को भेजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ज़ाहिर है कि इसके यहाँ कोई गलती है तो उसकी चीज़ें कट जाती। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो आप लोग अभी से ये गलती को अवॉइड कर सकते हैं वो ये कि अब जितने आने वाले कंटेस्टेंट हैं कि जो भी नात हो ना जो आपने पढ़नी हो, तो किसी ऐसे शख्स जिसको आपको मालूम हो कि इनकी बहुत अच्छी उर्दू है, उनसे साथ बैठ कर उसको थोड़ा बहुत ज़रूर उनको प्रोनाउंसिएशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, अल्फाज आपके वाजे होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपको जो टाइम दिया गया है ना, उस टाइम में जरा देखें, कोशिश करें कि वो जब बजर बजता है उसके बाद आपके पास 30 सेकंड होते हैं, तो आप बहुत खूबसूरती के साथ उसको जो है वो वाइंड अप करने की कोशिश करें। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे एक दो पिछली दफ़ा आए थे कि वो 2 मिनट का टाइम दिया था, उन्होंने 1 मिनट में ही सम अप कर दिया, जल्दी जल्दी में, उजलत में। ये भी हम आपसे नहीं कह रहे, तो उसके लिहाज से प्लीज़ इसका भी ख्याल रखें। हमारे पास मजीद कुछ ब्रेक पे हम चले जाते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे हम जाएंगे। ब्रेक के दौरान रिजल्ट इंशाल्लाह कंपाइल हो जाएगा, तो ब्रेक के बाद आकर रिजल्ट अनाउंस करते हैं ब्रेक के बाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और अब आ गया एक मुश्किल वक्त जिसमें करना होता है मुझे रिजल्ट अनाउंस। जुबैर भाई, सबसे पहले तो मुझे आप बताएं, आपको क्या लग रहा है कि किसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे? मेरा ख्याल में जो हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट थे, मेरा ख्याल में गालिबन उसामा नाम था उनका, पेशावर से जो थे, मुझे तो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर लगी जो मैं जजेस की राय जब मैंने सुनी थी, और स्पेसिफिकली जिसके बारे में मैंने कहा था कि आपको फसी भाई ने जो है रिमार्क्स दिए हैं, मार्क्स अभी नहीं दिए, तो मुझे खुद लग रहा था कि शायद उनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होगी। बाकी तो जाहिर है मुझे नहीं मालूम कि कितने मार्क्स मिले हैं। और जूरी मेंबर्स, आपको क्या लग रहा है comments सबसे हाईएस्ट किसके मार्क्स होंगे? मेरे ख्याल में एहसानुल्लाह खान जो हमारे लास्ट कंटेस्टेंट थे, बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया था उन्होंने, बहुत आवाज़ भी खूबसूरत थी। हाँ, गो के उसमें हमारे जो उनके रिमार्क्स थे हम लोगों के, वो उतने वो नहीं थे क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन आई फील कि वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं। जवेरी, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो तीनों ने अच्छा पढ़ा है। मुझे तो लग रहा है आज का कंपटीशन टफ है, थोड़ी थोड़ी ज़ाहिर मिस्टेक्स सभी की थी, बट जजेस नोज बेटर। हाँ, आप बताएं। एहसानुल्लाह खान, मुझे लगता है कि इन तीनों में से आज सबसे अच्छा मेरे लिहाज से उन्होंने ज़्यादा अच्छा पढ़ा। अच्छा, हम अपने पार्टिसिपेंट्स को भी बता दें कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, ये जो आप मुकाबले में आते हैं, तो ये जो हमारे यहाँ पर सलमान बैठे हुए हैं, वैस बैठे हैं, जवेरिया, ये कमेंट्स अपने करते हैं, लेकिन आपके जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ ये दो जजेस साहिबान यानी फसी भाई और सभी भाई, यही आपको इवेल्युएट कर रहे होते हैं। इनका इवेल्युएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपने कमेंट जरूर दे रहे होते हैं। बट ये आपकी रहनुमाई के लिए जरूर है, और हम इनके कमेंट से कभी मुतासिर भी नहीं होते। आप इनके कमेंट से मुतासिर भी नहीं होते। वैसे ये मैंने अक्सर नोट किया, जहाँ पर सलमान के बहुत दाद में हाथ उठ जाते थे वहीं पे। वैसे फसी भाई की वजह से ना ये महफिल में बड़ी रौनक भी है, ये बात है। एक दिन इत्तेफाक किया सर ने, एक दिन इत्तेफाक किया था। इस पे अगले दिन फिर आपको सारी में केक लाना चाहिए किया होगा, तुम्हें इत्तेफाक लग रहा होगा। अच्छा चले जी, बिस्मिल्लाह। अब आप सब लोग मेरा हाल अभी कुछ टाइम है, तो मैं चाहूंगा कि रिजल्ट अनाउंस करने से पहले अगले आने वालों के लिए अगर आप सभी भाई कोई 2-3 टिप्स बता दें, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, तो 2-3 टिप्स ऐसी हो कि जो ये कर सकें। देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है कि आवाज़ का हुस्न आपको गॉड गिफ्टेड है, लेकिन उसका इस्तेमाल आपकी मेहनत रियाजत पर मुनहसर है कि आप कितना उससे फ़ायदा उठाते हैं और कितना उससे बना सकते हैं। तो जब आप परफॉर्म कर रहे हैं मुकाबले में, तो याद रखिए कि उसमें हर वो चीज़ जो कलाम के तासुर को कहीं भी कमज़ोर कर सकती हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको कलाम को कंटिन्यूटी में रखना। फसी भाई, आप भी क्विकली जो बस मैं तो ये कहूँगा कि अल्फाज में वो समझ में आने चाहिए, वाज़ेह होने चाहिए। सही। चले जी, अब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे अली ज़ैन आसिफ, हाफिजाबाद से जिनका ताल्लुक था। आपको फसी भाई ने दिए हैं जनाब 7 मार्क्स और आपको सभी भाई ने दिए हैं 9 मार्क्स। आपका टोटल बनता है 16। पेशावर स्टूडियो से हमारे साथ सैयद उसामा, जिनका आईडी था 08। फसी भाई ने आपको 8 मार्क्स दिए हैं, 10 मार्क्स आपको दिए हैं सभी भाई ने। आपका टोटल बनता है 18 का। और हमारे आज के आखिरी और तीसरे कंटेस्टेंट इस्लामाबाद स्टूडियो से हवेलियन से इनका ताल्लुक, एहसानुल्लाह खान, आईडी इनका 09। 7 मार्क्स आपको दिए फसी भाई ने, जबकि 8 मार्क्स आपको दिए सभी भाई ने, जिससे आपका टोटल बनता है 15। अगर देखा जाए तो मार्क्स सबके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्लोज और 15 मार्क्स भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन समहाउ एहसानुल्लाह खान, ये जो 15 मार्क्स हैं मेरे प्यारे भाई, ये नंबर जो हैं ये सबसे आपके कम बनते हैं, जिनकी वजह से आगे मुकाबले में आप हमारे साथ नहीं होंगे। बट मैं फिर से एक बात कहूँ, जब हमारा कोई बहुत अच्छा कंटेस्टेंट जाता है तो मैं इसको ये बात ज़रूर कहती हूँ कि यू नेवर नो कि आप आगे जाके वाइल्ड कार्ड एंट्री में हमें दोबारा से इस मुकाबले में ज्वाइन कर सकें। सो अब आपको बहुत मुबारक हो अली ज़ैन आसिफ, और सईद उसामा आपको भी बहुत मुबारक हो, और एहसानुल्लाह खान आपको भी बहुत मुबारक हो कि आप बहुत प्यारे नात ख़्वान हैं। आपका बहुत शुक्रिया। वक्त